Today we will discuss some competitive numericals. Very first, two plane sheets of charge having charge densities sigma 1 and sigma 2 are normal to each other. What will be the magnitude of electric field at point O between plates? देखो, ये जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि दो प्लेन चार्ज शीट्स हैं और वो इस तरह से है। ये अगर ये बुक प्लेन चार्ज शीट है तो आप देखो कि इसकी एक शीट ये हॉरिजॉन्टल है और दूसरी वर्टिकल है। दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है, मतलब वो एक दूसरे से नॉर्मल है। और इसमें एक सीट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो सिग्मा 1 है, दूसरे की जो जो चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा 1 है और दूसरे की जो चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा 2 है। नाउ if we write the electric field intensity due to first sheet, it will be equal to E1 equal to sigma 1 by 2 epsilon naught. In the same way, if we write electric field intensity for second sheet, it will be equal to sigma 2 by epsilon naught. If we draw a diagram H, then this is the first first plane charge sheet, this is second plane charge sheet. If this first or this vertical charge sheet has electric field intensity E1 and charge density sigma 1 and this has charge density sigma 2, then electric field due to plane charge sheet vertical, say it is E1, then it will be normally outward as shown in the diagram away from sheet and represented at vector E1. Second one is normally outward, that is away from sheet 2 having charge density sigma 2 represented as E2. If we consider these two vectors E1 and E2, these two vectors are at 90 degree, means electric field in between the point of the two sheets placed normal to each other will be given as E equal to under root E1 square plus E2 square plus 2 E1 E2 cos theta। और यहाँ जो दो सीट के बीच का एंगल है वो 90 है, तो बीइंग cos 90 0, थर्ड टर्म will be 0 and therefore net field due to these two charge sheet will be equal to E equal to under root E1 square plus E2 square. On putting the value of E1 and E2 from above, we may write as E equal to sigma 1 by 2 epsilon naught whole square plus sigma 2 upon 2 epsilon naught whole square, स्क्वायर रूट के बाहर 1 by 2 epsilon naught कॉमन दे दो, ये आ जाएगा अंडर रूट सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर। इट विल बी योर डिजायर्ड आंसर और रिक्वायर्ड आंसर। नाउ सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। हियर दिस इज ए डायग्राम in which a number of capacitors are connected as shown in the diagram up to infinite, means number of capacitors are connected up to infinity. In first row there is a single capacitor, in second row it's 2, in third row it's 4, in fourth row it's 8, in fifth row it's 16, in sixth row it's 32 and so on। इस तरह से नंबर ऑफ कैपेसिटर्स जो है वो इंक्रीज करते जा रहे हैं, 1 2 4 8 16 32 64 ऐसा ये बढ़ते जाएंगे। सबको यहाँ मैं ड्रा नहीं कर सकता, इसलिए ये केवल 4 लाइन ड्रा किया हुआ है और बाकी का सीक्वेंस आपको एक्सप्लेन कर दिया। एंड we have to calculate here equivalent capacitance between point A and B। A and B के बीच हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है, where each capacitors is of 1 farad capacity, मतलब जो कैपेसिटर्स हैं उनका कैपेसिटेंस 1 farad है, जितने भी कैपेसिटर्स इसमें ऐड हैं। तो अब इस काम के लिए हम if
We calculate capacitance of first row. It is single capacitor and therefore it will be treated as C1, and now C1 equal to 1 farad without any calculation. In second row, say it is C2. There are two capacitors and these are joined in series. Therefore 1 by C2 equal to 1 by 1 plus 1 by 1. Now 1 by C2 equal to 2 by 1, C2 equal to 1 by 2. In the same way, we have calculated capacitance of third row. Say it is 1 by C3 equal to 1 by 1 plus 1 by 1 plus 1 by 1 plus 1 by 1, क्योंकि ये सब जो रोज हैं उनमें जो कैपेसिटर्स कनेक्टेड हैं वो सीरीज ऑर्डर में है, तो इनको हम सीरीज में, तो ये इस फॉर्म में वह सीरीज कैपेसिटेंस का इक्विवेलेंट होता है 1 बाई सी इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 अप टू 1 बाई Cn। तो इसमें 4 कैपेसिटर्स हैं, तो ये हम इसको इक्वेट करेंगे तो ये आ जाएगा 4 बाई 1। नाउ C3 इक्वल टू 1 बाई 4, एंड इन द सेम वे इफ वी इवेलुएट C4 then C4 will be equal to 1 by 8 and so on. C5 1 by 16, 1 by 32, and these rows are in parallel with each other. C1, C2, C3, C4 ऐसे ये सब आपस में पैरेलल में कनेक्टेड हैं A and B पॉइंट के बीच. Therefore net equivalent, say it is C, will be equal to C1 plus C2 plus C3 plus C4 and so on. Now C equal to first 1 plus second 1 by 2, 1 by 4 plus 1 by 8 and so on. ऐसे ये 1 by 16, 1 by 32. तो ये एक GP फॉर्म कर रही है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रही है, और इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए हम इसका सम फाइंड कर लें. तो सम फाइंड कर लें, तो सम कैसे फाइंड करेंगे? सम फाइंड करते हैं C इक्वल टू A अपॉन 1 माइनस R. A ये फर्स्ट टर्म होता है, R कॉमन रेशियो होता है. A फर्स्ट टर्म क्या है? 1 है. C ये इसका इक्विवेलेंट सम, तो C इक्वल टू A 1 अपॉन 1 माइनस 1 by 2, इट विल बी 1 अपॉन 1 by 2. ये हो जाएगा 2, तो C इक्वल टू हो जाएगा 2 फैरेड. ये आपका इक्विवेलेंट आ जाएगा कि इस पूरे इंटायर कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है दैट इज इक्वल टू 2 माइक्रो फैरेड. 3 infinite uniformly charged sheets of surface charge densities minus sigma, minus 2 sigma and plus sigma respectively are placed parallel to the xy plane as shown in the diagram. Find the electric field strength at a point P marked in the diagram. Here, this is the diagram given in the question. First sheet placed at z equal to 0. ये जो चार्ज सीट है ये कुछ इस तरह का अरेंजमेंट है कि सीट है तो ऐसे ये रखा हुआ है, ऐसा नहीं कि केवल लाइन है, ये एक सीट है, ये इस तरह से है, तो इसकी अपनी एक सरफेस भी होगी. जैसे ये बुक है तो इसकी सरफेस है, तो ऐसे ही ये सरफेस होगी. तो ये सीट है. पहली सीट z इक्वल टू 0 पर है, सेकेंड सीट z इक्वल टू 2a पर है, और एंड थर्ड वन इज प्लेस्ड एट द पोजिशन ऑफ z इक्वल टू 3a, and their charge densities are marked as minus sigma, minus 2 sigma, plus sigma. This is point P. Above, seat having charge density minus 2 sigma, and below the seat having charge density plus sigma, at which we have to find electric field intensities due to these 3 seats.
अब अपने को ये मालूम है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो पॉजिटिव चार्ज सीट के लिए अवे फ्रॉम सीट होती है, नेगेटिव चार्ज के लिए इनवर्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन टुवर्ड्स द सीट। मतलब अगर हम चार्ज सीट लें, ये कोई चार्ज सीट है और अगर ये पॉजिटिवली चार्ज होगा तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो आउटवर्ड होगी यहाँ से, और अगर ये सीट नॉर्मली है, वो निगेटिवली चार्ज है, तो ये इनवर्ड होगी। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए आउटवर्ड और नेगेटिव चार्ज के लिए इनवर्ड, ऐसी ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी प्लेन चार्ज सीट की। तो पहले सीट के लिए जो z इक्वल टू 0 पर है, अगर उसकी हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करें तो E1 इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, ये फार्मूला होता है। सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और ये नेगेटिवली चार्ज है, तो जो इसकी डायरेक्शन होगी वो इधर आ जाएगी। ये हो गई E1। इनवर्ड मीन्स निगेटिव जेड एक्सिस। अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो ये हो जाएगा माइनस के कैप, यूनिट वेक्टर यूज कर लेंगे तो आसान हो जाएगा डायरेक्शन। या आप इसको भी माइनस रिप्रेजेंट कर सकते हो, डाउनवर्ड के लिए नेगेटिव साइन यूज करो, अपवर्ड के लिए पॉजिटिव साइन यूज करो। चलो E2 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये भी इस सीट के लिए इस पॉइंट पर तो इनवर्ड होगी, तो ये E2 हो गई, ये भी इनवर्ड 2। डाउनवर्ड है, नेगेटिव जेड एक्सिस कहलाएगा तो माइनस के का। इन द सेम वे E3 इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज हैविंग चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा इक्वल टू 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये अवे फ्रॉम सीट होगी, लेकिन ये सीट पॉइंट P से ऊपर है तो टुवर्ड्स P हो जाएगा, तो इसकी भी डायरेक्शन E1 और E2 की डायरेक्शन की ही साथ मिल जाएगी, तो ये हो जाएगी E3 इक्वल टू नाउ नेट फील्ड। ये तीनों सेम डायरेक्शन में है, तो नेट फील्ड ड्यू टू दीज 3 सीट्स may be written as E1 plus E2 plus E3, E equal to sigma by 2 epsilon naught plus 2 sigma by 2 epsilon naught plus sigma by 2 epsilon naught, और ये हो जाएगा माइनस के कैप। माइनस के मतलब आपको बताया था कि ये केवल डायरेक्शन के लिए, जो कि फील्ड की डायरेक्शन नेगेटिव जेड एक्सिस के लॉन्ग है, इसलिए हम यूनिट वेक्टर जेड एक्सिस के लॉन्ग के होता है, माइनस ले लिया तो नेगेटिव जेड एक्सिस के लॉन्ग ये इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू दीज 3 सीट्स। A charge Q is to be divided on 2 objects. A charge Q is to be divided on 2 objects. What should be the values of the charges on the objects so that the force between the 2 objects can be maximum? Given question is, किसी ऑब्जेक्ट पर कोई एक चार्ज है प्लस Q, और प्लस Q को हम 2 ऑब्जेक्ट्स पर डिवाइड करते हैं, मतलब चार्ज Q को 2 ऑब्जेक्ट्स में डिवाइड करना है। इस तरह से डिवाइड करना है कि उनके बीच जो फोर्स हो वो मैक्सिमम हो। तो अपने को चार्ज फाइंड करना है कि ईच ऑब्जेक्ट्स पर क्या चार्जेस होंगे इन ऑर्डर टू दे विल एक्सर्ट मैक्सिमम फोर्स। उस कंडीशन में जब वो एक दूसरे पर मैक्सिमम फोर्स एक्सर्ट करें तो उनके बीच जो चार्ज का बंटवारा होगा वो किस रेशियो में होगा, अपने को ये फाइंड करना है। तो लेट फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज गिवन चार्ज स्मॉल q, टोटल चार्ज कैपिटल Q, एंड नाउ सेकेंड ऑब्जेक्ट फर्स्ट हैज चार्ज स्मॉल q, total charge was capital Q, then second will have charge Q minus Q. If these two objects, first and second, are separated at a small distance d or separated at a distance d, then according to Coulomb's law, force between them
will be equal to k q minus q by d square और f equal to 1 by 4 pi epsilon naught q minus q by d square, which is equation 1. From equation 1 we find that 1 by 4 pi epsilon naught a constant term, d is the separation between the charge, it is also constant, means ये जो न्यूमरेटर के टर्म्स हैं ये कांस्टेंट टर्म्स हैं, मतलब इनका कोई रोल उस फोर्स को मैक्सिमा या मिनिमा करने के लिए नहीं होगा हमारी गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि उसमें हमने केवल चार्ज को डिवाइड किया है, उनके सेपरेशन वगैरह को डिस्टर्ब नहीं किया है, उनके मीडियम को डिस्टर्ब नहीं किया है। तो ये जो न्यूमरेटर्स के टर्म्स होंगे इनका कोई रोल नहीं होगा फिलहाल चार्ज के फोर्स चार्ज को डिस्टर्ब करने में, मतलब जो फोर्स होगा दो चार्ज के बीच उसकी स्ट्रेंथ को वेरी कराने में ये न्यूमरेटर्स वाले टर्म जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनका कोई रोल नहीं होगा। लेट न्यूमरेटर q minus q is represented by a quantity or a variable y, then y equal to q minus q, मतलब ये कोई वेरिएबल है y, हमने ये माना कि ये इस क्वांटिटी के बराबर हैं, क्यों? क्योंकि अब इस क्वांटिटी y में वेरिएशन मिल जाएगा अपने को q के साथ, तो हम इसको फाइंड कर लेंगे। तो ये जो q है ये वेरिएबल है। अब अपने को फोर्स बताना है कि किस कंडीशन जब वो मैक्सिमम फोर्स इम्पोज करें तो q और कैपिटल Q माइनस Q की वैल्यूज क्या होंगी। इसके लिए हमने ये इक्वेशन बना लिया y इक्वल टू q माइनस q, इसको और सॉल्व करो तो ये आ जाएगा q माइनस q स्क्वायर, ये इक्वेशन हो गया सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि जो फोर्स है इक्वेशन 1 का वो केवल इसी y पर डिपेंड कर रहा है, बाकी सारे टर्म्स उसके कांस्टेंट हो गए। अब सारे टर्म्स कांस्टेंट हो गए तो y पर वेरी कर रहा है, y पर वेरी कर रहा है तो फोर्स मैक्सिमम हो तो हम यहाँ कंडीशन लिखेंगे फॉर मैक्सिमम फोर्स dy by dq means rate of change of charge with y will be rate of change of quantity with q will be equal to 0। ये मैक्सिमा की कंडीशन है कि अगर फोर्स मैक्सिमम होगा तो फर्स्ट डेरिवेटिव dy by dq ये 0 होगा, और अगर ऐसा हुआ तो इस इक्वेशन 2 को हम डिफरेंशिएट करें विथ रेस्पेक्ट टू q, देन ये आ जाएगा dy by dq इक्वल टू d by dq q माइनस q स्क्वायर, तो ये आ जाएगा dy by dq इक्वल टू ये q माइनस 2q, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये dq 1 हो जाएगा तो q बचेगा, और यहाँ ये हो जाएगा 2q इंटू dq बाई dq, तो वो भी 1 हो जाएगा, तो q माइनस 2q फॉर मैक्सिमम फोर्स फर्स्ट डेरिवेटिव dy बाई dq विल बी 0, मतलब ये एक कंडीशन है कि अगर फोर्स मैक्सिमम होगा तो फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होगा तो q माइनस 2q इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर वैल्यू ऑफ q इक्वल टू 2q इक्वल टू q बाई 2, तो जो स्मॉल q होगा वो q बाई 2 हुआ, तो जो दूसरा q माइनस q होगा वो भी q बाई 2 होगा, मतलब जो चार्जेस हैं वो हाफ डिवाइड हो जाएंगे। Thus the charge should be divided equally on the two objects.